أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ مالک الملک سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر قسم کی روحانی، جسمانی، وبائی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ اور سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اور اگر آپ پہلے سے ہی اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں، کیونکہ سبسکرائب کرنے پر نہ ہی کوئی محنت کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی کوئی وقت صرف ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ لیکن سبسکرائب سے آپ کے پاس تمام پہلے والے اسباق اور نیا آنے والا ہر سبق آپ تک روٹین سے پہنچتا رہے گا، اور اپنے رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور آپ کے شیئر کرنے سے جب اور لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا، اور آپ کے شیئر کرنے سے لوگوں کو جب فائدہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے، کیونکہ یہ قرآن کے لیکچرز ہیں اور نماز کے ٹاپکس ہیں۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں شامل کریں تاکہ ہمارے جو مقصد ہے ہمارا وہ پورا ہو، تاکہ کل قیامت کے دن یہ چینل، یہ سبق، یہ ہمارے لیے بہترین ذریعہ بنے جنت میں جانے کا۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف کہ آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ سبق نمبر 40 پر پہنچ آئے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 40 لیسن نمبر 40 پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس میں بھی سلام پھیرنے کے بعد کی کچھ مزید دعائیں میں نے کہا وہ کر لیں تاکہ نماز کے بعد مصلی پر جا نماز پر بیٹھنے کا زیادہ ٹائم مل جائے، اور اللہ کرے کہ یہ ساری دعائیں ہمیں یاد ہو جائیں اور ہم ان کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرمائے۔ تو چلیں ہاں آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سی دعا پڑھنے لگے ہیں۔ جی آج ہم یہ بھی دعا پڑھیں گے، موت کی سختیاں اور بے ہوشیوں سے بچنے کی دعا، کیونکہ موت کا وقت اتنا کٹھن اور سخت وقت ہوتا ہے، اور اللہ کرے کہ اس وقت ہم اپنے ہوش و حواس میں ہوں، اور جو ہے اس وقت ہماری زبانوں پر کلمہ جاری اور ساری ہو۔ بے ہوشی کی کیفیت سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، اور موت کی سختی سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ تو یہ دعا جو ہے اسے ہمیں ضرور اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے، اور اس سے تو کوئی انسان بچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو لہٰذا اور موت ہے بھی کٹھن مرحلہ اور مشکل وقت ہے، اس لیے اس کی سختیوں اور بے ہوشیوں سے جو ہے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے، چونکہ نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے ہم نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں ان میں اس دعا کو بھی شامل کریں گے تاکہ ہم ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیں تاکہ ہم موت کی سختی اور بے ہوشی سے بچ سکیں۔ تو چلے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ یاد کر لیں گے صحیح تلفظ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت، علی غمرات الموت وسکرات الموت
अल्लाहुम्मा आइन्नी, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, आइन्नी मेरी मदद फरमा, अला गमरातिल मौत, मौत की सख्तियों पर, वसकरातिल मौत, और मौत की बेहोशियों पर। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला गमरातिल मौत वसकरातिल मौत, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला गमरातिल मौत वसकरातिल मौत। ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा मौत की सख्तियों और बेहोशियों में, या अल्लाह मौत की सख्तियों और उससे तारी होने वाली बेहोशियों में मेरी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अला गमरातिल मौती वसकरातिल मौत। तो इस दुआ को इसी तरह से पढ़ें ताकि याद हो जाए। ठीक है, यहाँ पर आइन्नी आइन की आवाज जरूर सही निकालिएगा ताकि मानी चेंज ना हो जाए। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला गमरातिल मौती वसकरातिल मौत। ठीक है, या अल्लाह मौत की बेहोशियों में, गमरातिल मौत मौत की बेहोशियों में और मौत की सख्तियों में या अल्लाह मेरी मदद फरमा। ठीक है, चल। और बहुत ही बेहतरीन दुआ है क्योंकि इस दुआ के बहुत ज्यादा फवायद हैं कि ये दुआ जो है हमें जिंदगी में कर लेनी चाहिए, बुढ़ापे से पहले कर लेनी चाहिए। बुढ़ापे की तरफ हम जा रहे हैं, हमारी जिंदगियां जो हैं वो दिन ब दिन हमारी जिंदगी जो है वो खात्मे की तरफ है, और हमें ये अल्लाह ताला से हर रोज दुआ करनी चाहिए। नमाज के बाद भी इसको पढ़ना चाहिए और वैसे भी जब ख्याल आ जाए उस वक़्त पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये दुआ बहुत ही कंप्लीट दुआ है जो हमें करते रहना चाहिए। तो चले हम इस दुआ को पढ़ना शुरू करते हैं। हमने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाहुम्मा गफिर लना, अल्लाहुम्मा गफिर लना। हम इसको अच्छे तरीके से सही तलफ़ुज़ के साथ याद कर लेंगे ताकि हम इसको याद करने के बाद अपनी हर नमाज के बाद भी पढ़ें, और ऐसे भी सुबह शाम या जिस वक्त भी हमारा ध्यान अपनी मौत की तरफ, कब्र की तरफ, जिंदगी के खात्मे की तरफ, जिस वक्त भी हम कोई ऐसी खबर सुन लें किसी की मौत की, या हम खबर सुन लें किसी बीमार इंसान के बारे में सुन लें, तो फिर भी हमें ये दुआ जो है वो पढ़नी चाहिए। क़यामत की कोई खबर सुन लें, कोई क़यामत का ख्याल आ जाए, कोई कब्र का ख्याल आ जाए, फिर भी हमें मैदान महशर का, मैदान हशर का हमारे ज़हन में ख्याल आ जाए, तो हमें इस दुआ को फौरन पढ़ना चाहिए और अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी चाहिए। तो चले हम इसको पढ़ते हैं और याद करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा गफिर लना, अल्लाहुम्मा गफिर लना। हम लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे, पता है ना आपको, लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है तो हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा, मीम मुशद्दद का गुन्ना करते हुए आगे हम गैन से मिलाएंगे। अल्लाहुम्मा गफिर लना क़ब्लल मौत, क़ब्लल मौत, क़ब्लल मौत, वरहमना, वरहमना, वरहमना। हा को वस्ते हलक से निकालते हुए ना को खींचेंगे। वरहमना इंदल मौत, इंदल मौत, यहाँ पर इख्फा हो रहा है। ठीक है, और फिर आज मैं यही कहूंगी कि जो मेरा सबक नंबर 22 है उसको जरूर सुना करें, उससे आप अपने इनके क़वायद की मश्क जो है वो कर सकते हैं। वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना, ज़ाल को ज़बान की नोक और ऊपर वाले सामने के दो दांतों के सिरे आपस में मिलेंगे, ज़बान की नोक और सिरे, तो ज़ाल अदा होगा। वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत, बा आइन को वस्ते हलक से, बअदल मौत, वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत, वला तुहासिबना,
वला तुहासिबना, बा के ऊपर हल्का सा कलकला, ठीक है। ये कलकला का भी आपको पता चलेगा, पिछले आप सबक सुनेंगे तो उसमें भी कलकला के बारे में बताया गया है। जहां पर हमने वो पढ़ा है तशदीद के का पढ़ा है और जज़म और सुकून पढ़ा है, वहां पर आपको जज़म और सुकून वाले सबक में आपको कलकला के बारे में पता चलेगा। वला तुहासिबना यौमल क़ियामती, यौमल क़ियामती, यौमल क़ियामती इन्नका, नून मुशद्दद का गुन्ना करते हुए इन्नका, इन्नका अला कुल्ली, अला कुल्ली शैइन क़दीर, यहाँ भी इख्फा होगा, शैइन क़दीर, ये इख्फा है, क़दीर, अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये अब आपको समझ आ गई होगी कि जहां जहां मैं रुक रही हूँ इस तरह से अगर आप याद करेंगे या इस तरह पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल एक जुमला जो है वो मुकम्मल होगा। जैसे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना क़ब्लल मौत, ये एक जुमला हो गया। वरहमना इंदल मौत, दूसरा जुमला हो गया। वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत, तीसरा जुमला हो गया। वला तुहासिबना यौमल क़ियामह, इस तरह से, ठीक है। अब आप देखते हैं किस तरह हमने जुमले मुकम्मल किए तर्जुमे के हिसाब से। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना क़ब्लल मौत, ए अल्लाह मौत से पहले हमारी मग़फ़रत फरमा। वरहमना इंदल मौत, और मौत के वक़्त हम पर रहम फरमा। वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत, और मौत के बाद हमें अजाब ना देना। वला तुहासिबना यौमल क़ियामह, और क़यामत के रोज हमारा हिसाब ना लेना। ठीक है, इस तरह जुमलों के साथ आप पढ़ेंगे, आपको तर्जमा भी इंशाअल्लाह उल अजीज बहुत जल्दी याद हो जाएगा और जहन में रहेगा कि हम अल्लाह ताला से क्या तलब कर रहे हैं, किस बख्शिश मांग रहे हैं और रहम की अपील कर रहे हैं और अजाब से बचने की दुआ कर रहे हैं और हिसाब किताब वाले दिन अल्लाह ताला से बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने की अपील कर रहे हैं। तो ये इस तरह जुमलों के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा और इसका तर्जुमा आपके ज़हन में रहेगा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ठीक है, समझ आ गई इस तरह से। तो इसी तरह इसको याद करें और बहुत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ और गिड़गिड़ा कर और दिल से दुआ करने की कोशिश करें। बहुत कामिल दुआ है कि जिसमें हमने अल्लाह से मरने से पहले बख्शिश भी मांग ली और मौत के वक़्त अल्लाह से रहम का भी सवाल कर लिया और फिर मौत के बाद अल्लाह ताला से अजाब ना देने की अपील भी कर ली और बगैर हिसाब किताब के जो है जन्नत में जाने का भी अल्लाह से सवाल कर लिया, क्योंकि इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। हम क्यों अल्लाह ताला से दुआ करते हैं? हमें अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए और ख़ास तौर पे इस दुआ को बार बार करनी है और अल्लाह ताला से इसके अलावा भी ये दुआ की है, इसके अलावा अपनी ज़ुबान में भी और भी दुआएं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये दुआ और रजील उम्र की तरफ जाने से पहले ही हम अल्लाह ताला से ये दुआएं करते हैं और कर लेनी चाहिए। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, तू वहाब है, या अल्लाह तू रज़्ज़ाक है, तू नूर है, तू मालिक है, या अल्लाह तू कुद्दूस है, या अल्लाह रहमान है, या अल्लाह तू रहीम है,
तू मालिकुल आलाम है, या अल्लाह तू हन्नान है, तू मन्नान है। उसके नामों का वसीला देकर उससे दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तमाम सिफातें और तारीफें तेरे लायक हैं। ए मालिक, ए मेरे अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, हमारा बाल बाल गुनाहों में डूबा हुआ है। मालिक, हम शर्मिंदा हैं, हमें पाक कर दे गुनाहों से, हमें मुआफ फरमा दे। मालिक, तू रहम फरमा दे हम पर, हमारे माँ बाप पर, हमारे बहन भाइयों पर, हमारे तमाम रिश्तेदार अजीज़ो अकारब पर रहम फरमा दे या अल्लाह। हमारे दोस्तों और पूरी उम्मत मुसलमान पर या अल्लाह रहम फरमा दे। अल्लाह सबको मुआफ फरमा दे, क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, एक दूसरे को दुआओं में याद रखते हैं, तो अल्लाह ताला गैब की दुआ गैब के लिए कबूल करते हैं। और जो हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते उस पर कहते हैं कि जो तू दूसरे के लिए दुआ कर रहा है, ये दुआ अल्लाह ताला तेरे हक में भी कबूल फरमाए। तो इसलिए दुआ में जो है, दुआ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अपने लिए भी करनी चाहिए और दूसरों के लिए भी करनी चाहिए। पहले आप अपने लिए करें, फिर आप दूसरों के लिए करें। तो ठीक है, इस दुआ को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इस तरह एक एक जुमला करके, एक एक आयत करके आपको बता दिया है कि इस तरह आप याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, ये दूसरी दुआ है वालिदैन के लिए दुआ। इसे मैं इसलिए यहाँ पर लाई हूँ कि नमाज के बाद ज़रूर दुआ कबूल होती है। तो माँ बाप से बढ़ के और कौन हमारी दुआओं के हकदार हो सकते हैं, इसलिए हम नमाज के बाद अपने वालिदैन के लिए भी जो है वो ज़रूर दुआ करेंगे। सलाम फेरने के बाद, सलाम के अज़कार पढ़ने के बाद हम ज़रूर ये दुआ करेंगे, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, रब्बिरहम्हुमा, उन दोनों पर, मेरे अम्मी और अब्बू दोनों पर रहम फरमा, कमा, जिस तरह, रब्बायानी सगीरा, उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की, बचपन में उन्होंने मेरा ख्याल रखा, मेरे हाल पर उन्होंने रहम किया। या अल्लाह, इस तरह उन पर रहम फरमा। उन्होंने अपने आराम और सुकून को नहीं देखा, या अल्लाह उन्होंने मेरे आराम और सुकून को देखा। या अल्लाह, मैं उनका ये कर्ज अदा नहीं कर सकता, लेकिन या अल्लाह तो उनके हक में मेरी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा। वालिदैन के हमारे ऊपर बहुत सारे हुकूक हैं, चंद एक तो ये हैं, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चंद एक ये हैं कि उनकी इज्जत की जाए, उनका एहतराम किया जाए। नंबर 2 पर उनसे मोहब्बत, उल्फत, उनसियत रखना। नंबर 3 इतात, यानी उनकी फर्माबरदारी करना। नंबर 4 खिदमत, उनकी खिदमत करना, उनके काम आगे बढ़ बढ़ के करना। और नंबर 5 फिक्र राहत, उनके आराम का ख्याल करना, उनको आराम पहुंचाना। नंबर 6 रफ़ हाजत, यानी उनकी ज़रूरियात पूरी करना, जो उनकी ज़रूरियात हों उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करना। और ज़ियारत करना, उनके चेहरे की ज़ियारत करना। नंबर 8 उनके लिए दुआए मगफरत करना। नंबर 9 इसाले सवाब के लिए दुआएं करना, इसाले सवाब के लिए उनके लिए सदका खैरात करना, उनके लिए कुर्बानी करना, उनके लिए हज और उम्रा करना। और इकराम, एजाज व अहबाब व अहले कराबत, और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी माँ की, बाप के बहन भाई, उनके रिश्तेदारों का इज्जत का एहतराम करना। और एआनत, एजाज व अहबाब अहले कराबत, और उनके रिश्तेदार, दोस्त, मुताल्लिकीन की मदद करना। एआनत का मतलब होता है उनकी मदद करना। अगर अपने वालिदैन के खूनी रिश्तों में से किसी को मदद की जरूरत है तो बढ़कर अपने वालिदैन की खातिर उनकी मदद करना। और उनकी अमानत, अगर उनके जिम्मा कोई कर्ज वगैरह है तो उसे अदा करना। और अगर कोई उनकी जायज वसीयत है तो उस पर अमल करना, उनकी जायज वसीयतों पर अमल करना। ये इस तरह के ये सारे हुकूक जो हैं, ठीक है, उनके लिए हैं। ठीक है, जिंदगी में जो है क्या करना है, उनकी इज्जत करना है, उनसे मोहब्बत करना है, इताअत करना है, खिदमत करनी है, उनको आराम पहुंचाना है, उनकी जरूरियात का ख्याल करना है। ठीक है, और उनके चेहरे की ज़ियारत करना है। और फिर उनकी मगफरत के बाद क्या है, मगफरत की दुआ करना है। इसाले सवाब के लिए जो मैंने बताए हैं काम, जिस तरह उनके नाम का सदका खैरात करना, कुर्बानी करना, हज व उम्रा करना, और सदका जारिया के लिए कुछ काम कर देना। और उनके रिश्तेदारों के साथ उनके रिश्तेदारों की इज्जत करना और उनके रिश्तेदारों की मदद करना। और अगर वालिदैन के जिम्मा कोई कर्ज था वो छोड़कर चले गए तो पता चले तो उनका कर्ज अदा करना। फिर उनकी जायज कोई वसीयत थी तो उनकी उस वसीयत पर अमल करना। और
उन हाथ उठा के उनके लिए बार बार दुआएं करना, ठीक है। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिरली रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया। और एक ये भी दुआ है, अल्लाहुम्मा इग़फिर लहुम वरहमहुम कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा इग़फिर लहुम वरहमहुम कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा इग़फिर लहुम वरहमहुम कमा रब्बयानी सगीरा। कि अल्लाह उनको बख्श दे, उन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी तरबियत की, जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझे पाला। तो वालिदैन के लिए हम अल्लाह, अगर सिर्फ माँ फौत हो चुकी हैं तो उनके लिए हम इस तरह कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा इग़फिर लहा वरहमहा कमा रब्बयानी सगीरा। और अगर सिर्फ बाप फौत हो चुके हैं तो उनके लिए अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू कमा रब्बयानी सगीरा। तो इस तरह से उनके लिए जितनी दुआएं करें उतनी कम है। इसलिए हम ये दुआ पढ़ भी नमाज के बाद इंशाल्लाह करेंगे, रब्बिरहमहुमा रब्बिरहमहुमा। हा को वस्ते हलक से निकालना, इस तरह ना हो कि आपका हा सही ना हो और मानी चेंज हो जाए, ठीक है। रब्बिरहमहुमा, यहाँ पे हु है और यहाँ पे हा है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ठीक है, ये अपने वालिदैन के लिए हम दुआ करेंगे और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को हमारे वालिदैन के हक में कबूल और मकबूल फरमाए। और हमारे जिनके वालिदैन दुनिया में है तो उनको अल्लाह ताला सेहत वाली, सलामती वाली, शिफा वाली, आफियत वाली, इज्जत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको आला इल्लीजीन में जगह अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला उनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमाए। तो इस दुआ को हमने जारी और सारी रखना है, और हर नमाज के बाद और जिस तरह जब भी अपने वालिदैन का ख्याल आए तो फौरन माँ का कुछ ख्याल तो आता ही है, आना ही चाहिए। जब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं तो फिर हमें अंदाजा होता है, पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने हमें पाला, किस तरह से उन्होंने हमारी तरबियत की, किस तरह से उन्होंने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। तो इसलिए जो है ये बार बार हमें दुआ करनी चाहिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाए और हमारे वालिदैन के हक में हमारी कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सबक मुकम्मल हुआ। आप हमें दुआओं में याद रखिए, हम आपके लिए दुआएं करते रहेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। नेक्स्ट सबक तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।